Welcome to today English lecture, and today I am going to teach you a very important topic, which is tense. Tense is a very important topic for exam point of view. From tense many questions had been asked to your board exam. So without any more delay I am gonna start today lecture tense. So first of all, let me know that the importance of tense is everywhere. We can say overall, tense is a backbone of grammar. If you don't know tense, you can't understand voice, narration, question tag, and many more things. So today we have to know in detail the concept of tense. So we have to start with the definition of tense. Let me show you. Before definition, we have to know that the word tense has been has been taken from Latin word which means tempus. The maximum word, I focus here that the maximum word of English language has been taken from like Latin, Greek and Sanskrit, Persian, many more languages, because English is the combination of almost 50 languages. Similarly, the word tense has been also derived from Latin word tempus, which means time. And we talk about the definition of tense. So we can say in many ways that the definition of tense we can express different way. So we can express in simple way what's a tense. So we can say in simply, by tense we understand the corresponding relation between time and action. We can also say in other word, by tense we understand the close relation between time and action. And then another definition we can also express that verb change its form according to situation, according to action, according to function, that is called voice. These all definition I write here. You have to note this on your notebook. So firstly we have to know the origin of tense. So let me write here the origin of tense. Origin of tense. What's the meaning of origin? Origin means बच्चों उत्पत्ति. टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, टेंस आया कहाँ से? तो टेंस जो है एक लैटिन भाषा, जिस तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है उसी तरह लैटिन भी काफ़ी पुरानी भाषा है, जो जिस टाइम इंग्लिश का जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम से लैटिन चल रहा है. तो उसी भाषा से जो है लैटिन शब्द के टेम्पस नामक शब्द से जो है टेंस लिया गया है, विच मीन्स टाइम. तो ओरिजिन लिखते हैं बच्चों पहले. द वर्ड tense has been taken from Latin word tempus, which means time. बच्चों जो टेंस शब्द है ना, जो हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं, वो टेंस शब्द जो है कहाँ से निकल कर बना है? तो लैटिन भाषा के टेम्पस नामक शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टाइम. ये तो ओरिजिन हुई टेंस का, टेंस आया कहाँ से. अब नाउ वी मूव टू द डेफिनेशन ऑफ टेंस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस? सो वी कैन से simply by tense we understand the close relation between time
and action. We can also say in other word like we can say by tense we understand the corresponding relation between time and action, है ना. And the last definition is the last third definition. We can also say verb change its form according to function or action is called क्या, is called tense. तो बच्चों ये जो है सो टेंस का ओरिजिन रहा और 3 डेफिनेशन रहा. डेफिनेशन से क्या समझे हम, तो बाय टेंस वी अंडरस्टैंड द क्लोज रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन. टेंस जो है हमें जनरली समय और जो काम है एक्शन उसके बीच के संबंध को शो करता है कि कोई काम किस समय में हुआ. क्योंकि वी ऑल्सो नो डैट देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ टाइम, present time, past time and future time. These all are natural thing. We cannot define time. अगर बात करें बच्चों तो टेंस का डेफिनेशन रहा. अगर बात करें टाइम की तो टाइम जो है, टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट that cannot be explained, that cannot be defined, because time is not grammatical concept but tense is a grammatical concept. Time is a natural thing, we cannot define this. तो बच्चों हाँ, अब here the question is that, पहले इसको समझ लेते हैं. By tense we understand the corresponding relation between time and action. दूसरा डेफिनेशन कहता है कि टेंस से हमारा अभिप्राय, बाय टेंस वी अंडरस्टैंड, इसका मतलब हुआ टेंस से हमारा अभिप्राय कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन, समय और कार्य के बीच परस्पर संबंध से होता है. एंड द थर्ड, वर्ब चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू फंक्शन और एक्शन इज कॉल्ड टेंस. जो वर्ब होता है वो जो है समय के हिसाब से वो अपना क्या करता है, फॉर्म को चेंज करता है. तो ये चेंज करने को ही क्या कहते हैं, हम टेंस कहते हैं. अब वर्ब के फॉर्म कई सारे हैं बच्चों. V1 होते हैं, V2 होता है, V1, V2, V3, V4 और V5 होता है. तो ये जब हम टेंस पढ़ेंगे तब इसको समझते हैं, है ना. तो ये रहा डेफिनेशन. अब हम समझते हैं कि टाइम क्या है, व्हाट इज टाइम. उसके बाद हमें पढ़ना है कि द टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं. तो इसे नोट करो बच्चों. कर लिया नोट? कर लिया? Now we have to understand that what is time. What is time क्या है? क्योंकि टाइम एंड टेंस दोनों both are related. अब टाइम के बारे में समझते हैं बच्चों. टाइम क्या है तो कह सकते हैं हम, टाइम जो है, टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट that cannot be defined. बच्चों टाइम जो है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये प्राकृतिक चीज है जिसे हम डिफाइन नहीं करते. क्योंकि टाइम कितना है, 3 ही टाइम है. जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जो कि चल रहा है ना. और आप जो है सो कुछ देर के बाद, पढ़ने के बाद सोने वाले हैं, जो कि फ्यूचर टाइम है. और कुछ देर पहले आपने जो है सो कुछ और किया. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बीत चुका, कुछ देर पहले शाम में आपने खेला कूदा, वो टाइम आपका क्या हो गया, बीत गया. तो वो पास्ट टाइम था. और अभी फिलहाल प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं मेरा. तो ये वीडियो देख रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं.
तो ये प्रेजेंट टाइम हुआ। और वीडियो देखने के बाद कुछ देर के बाद आप सोने वाले हैं, तो ये सोना जो है सो फ्यूचर टाइम आएगा। तो प्राकृतिक ने जो नेचर जो है वो टाइम कितने बनाए, 3 टाइम बनाए, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम, है ना। तो टाइम जो है सो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। या वी कैन ऑल्सो से डैट टाइम इज नॉट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टाइम जो है ये, या हम कह सकते हैं टाइम इज नॉट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट टाइम क्या है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए हमें टाइम के बारे में नहीं पढ़ना, हमें किसके बारे में पढ़ना है, टेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। अब टाइम कितने होते हैं, तो 3 टाइम होते हैं, एक प्रेजेंट टाइम होते हैं, एक पास्ट टाइम होते हैं और एक फ्यूचर टाइम होते हैं। प्रेजेंट टाइम क्या होता है, तो द रनिंग टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम, कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम। कितने होते हैं बच्चों, टाइम 3 होते हैं। कितने टाइम होते हैं, टाइम जो होते हैं बच्चों 3 होते हैं, है ना। एक होता है द फर्स्ट प्रेजेंट टाइम, है ना, प्रेजेंट टाइम, एंड द सेकेंड पास्ट टाइम, है ना, एंड द थर्ड फ्यूचर टाइम, है ना। प्रेजेंट टाइम क्या कहता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं रनिंग टाइम। क्या चीज, रनिंग टाइम। रनिंग टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम। पास्ट टाइम क्या होता है, पास्ट, हाँ, पास्ट टाइम इज कॉल्ड, पास्ट टाइम इज कॉल्ड क्या, पास्ट टाइम। जो बीत गया जो समय उसे क्या कहते हैं, पास्ट टाइम, है ना। एंड द फ्यूचर टाइम, द टाइम दैट विल कम, कह सकते हैं द टाइम that will come is called क्या, FT, शॉर्ट में लिख दिए। प्रेजेंट टाइम क्या है, द रनिंग टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम, है ना, जो टाइम जो अभी चल रहा है, जो आप वीडियो देख रहे हैं। पास्ट टाइम क्या है, द टाइम दैट इज पास्ट, वह समय जो आप कुछ देर के बाद आप वीडियो देखना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। वह टाइम जो गुजर चुका, बीत चुका, वो क्या होगा, पास्ट टाइम। फ्यूचर टाइम, द टाइम दैट विल कम इज कॉल्ड FT, फ्यूचर टाइम। वह समय जो आएगा, जो आने वाला है, उसे क्या कहते हैं। तो ये तो टाइम के बारे में हुआ, जो कि हमें पढ़ना नहीं है। हमें पढ़ना है किसके बारे में, टेंस के बारे में। व्हाई, बिकॉज टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, सो वी हैव टू लर्न अबाउट टेंस, बट टाइम इज नॉट अ grammatical concept, so we do not study about time. So we have to understand, we know already the definition of tense and the origin of tense. Now we move to what's the types of tense. We move towards the types of tense. You know very well from 6, 7 and 8 class, 9, 10 class, already you know that you have to study in previous class the types of tense. You know very well there are 3 types of tense: present tense, past tense and future tense. And also present tense is also divided into 4 types. Similarly past tense is also divided in 4 types, and similarly also future tense is divided into 4 types. So I write here the types of tense. टेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो टेंस जो है सो वो 3 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ चुका है 9, 10, 7, 8 सभी क्लास में, फिर भी रिवीजन के तौर पर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, अगर पढ़ लियो तो रिवीजन कर लो। तो पहला क्या है बच्चों, प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम वर्तमान काल, वर्तमान काल, है ना। ये प्रेजेंट टेंस आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद क्या है, पास्ट टेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, भूतकाल, है ना। और एंड द थर्ड लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस। वी कैन से इन हिंदी भविष्यत काल। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस. So now you know that
there are three types of tense: present tense, past tense and future tense. And these all three tense are also divided into four types. So in overall we can say that there are 12 tense in English. टोटल टेंस कितने हैं बच्चों? 4 है। इसके 4 प्रकार, इसके 4 प्रकार और इसके 4 प्रकार। तो कुल मिलाकर टेंस 12 होते हैं। पहला क्या है बच्चों? तो इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। ठीक। उसके बाद क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इसका एक और नाम है, इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हमको? इम्परफेक्ट। कहोगे क्यों सर? तो चूंकि कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम जारी है, और इम्परफेक्ट का परफेक्ट मतलब होता है काम पूरा हो गया, लेकिन उसमें इम लगा दिए IM तो नेगेटिव शो करेगा, मतलब काम पूरा नहीं हुआ। तो पूरा नहीं हुआ मतलब क्या? काम कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू है इसलिए इसे बोल दिए कंटिन्यूअस। एंड द थर्ड, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड परफेक्ट। इसका हिंदी होगा बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट का हिंदी क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। एंड द लास्ट थर्ड वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हिंदी होगा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये रहा प्रेजेंट का, ठीक ना। उसी तरह ये प्रेजेंट का है बच्चों। उसी तरह अब हम पास्ट का देखने वाले हैं। जिस तरह प्रेजेंट में 4 प्रकार, उसी तरह पास्ट में भी 4 प्रकार है। ये सब चीज कॉमन है, बस पास्ट में आ रहा है तो सब में क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ भी सेम होगा। क्या होगा? यहाँ भी इंडेफिनिट, इसमें भी होगा, है ना। यहाँ भी इंडेफिनिट होगा, INDEFINIT, यहाँ भी इंडेफिनिट होगा। इसका हिंदी होगा सामान्य भूत काल। उसी तरह क्या होगा बच्चों? है ना, यहाँ भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। पास्ट इंडेफिनिट, सामान्य भूतकाल। उसके बाद होगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसका हिंदी होगा अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद होगा पास्ट परफेक्ट, PERFECT। इसका हिंदी होगा पूर्ण भूतकाल। एंड द थर्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हिंदी होगा पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। अब फ्यूचर में क्या होगा बच्चों? तो फ्यूचर में भी वही इंडेफिनिट, है ना। कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद कह सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसको कह सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद कह सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट, पूर्ण वर्तमान सॉरी सामान्य भविष्यत काल होगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट सामान्य, और फ्यूचर का क्या होगा? भविष्यत काल। यहां भी बच्चों भविष्यत काल, और यहां भी भविष्यत काल, ठीक ना। ये आप जानते हैं पहले से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हिंदी होगा पूर्ण अपूर्ण क्या? भूतकाल, है ना। तो इसको समझते हैं। देखो बच्चों क्या है? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपूर्ण वर्तमान काल,
प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट सामान्य भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट सामान्य भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट पूर्ण भविष्यकाल और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। तो ये आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, इसको उतारो। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसका आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस। हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस की पहचान कैसे करें कि ये कौन सा टेंस है ना। तो बच्चों इसको उतारो, उतार लिया 1 2 3 है ना, इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद देखो क्या करना है हमें, उसके बाद करना ये है कि डिटेल से पढ़ना है हमें। क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है ना। तो पहले ये समझना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश के थ्रू पहचान कैसे करेंगे कोई टेंस जो है सो कौन सा है ना, टेंस का कौन सा प्रकार है। सो नाउ आई मूव टुवर्ड्स हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस है ना, हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंस है ना थ्रू इंग्लिश एंड ऑल्सो इन हिंदी, So let's see here. We know that there are 3 types of tense. Present tense है ना, कोई दिक्कत नहीं, सूस यहाँ पे लिखना है, PRESENT प्रेजेंट टेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, पास्ट टेंस है ना। उसके बाद क्या है मेरा अगला, फ्यूचर टेंस है ना। चार्ट के थ्रू समझते हैं बच्चों शॉर्ट में। वैसे टेंस पढ़ने के लिए आपको डिटेल में टेंस के 2 रूल होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूल, कॉमन रूल एंड स्पेशल रूल। तो हम लोग जो ये पढ़ने जा रहे हैं चार्ट शॉर्ट वे में, ये कॉमन रूल का चार्ट देखने जा रहे हैं। उसके बाद स्पेशल रूल भी होता है जो कि थोड़ा एडवांस होता है। क्या होता है, एडवांस होता है। तो पहले हम कॉमन रूल पढ़ लेते हैं थ्रू चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू नो इन डिटेल एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। सो पहले यहाँ देखना है बच्चों। अब टाइप्स देखो, यहाँ पे टाइप्स है ना। पहला में क्या था, इंडेफिनिट, INDEFINIT। इसका एक और नाम है, सिंपल भी कह सकते हैं हमको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो या सिंपल प्रेजेंट बोलो, ठीक। नो एनी प्रॉब्लम, I think you know very well these all thing. And the first and the second, continuous, इसका क्या है नाम बच्चों एक और, तो कह सकते हैं हम imperfect, नो प्रॉब्लम है ना, ठीक है ना। And the third perfect, and the third is क्या, and the third one is perfect, and the last one is perfect continuous है ना। 4 है ना बच्चों। अब इसको समझते हैं इन शॉर्ट वे कि जो कोई एक्शन है वो कौन सा टेंस से जुड़ा हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के कितने प्रकार होते हैं, उसके भी 4 प्रकार होते हैं, देखो ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। ये टाइप्स हुआ। तो कुल मिलाकर टोटल टेंस कितना हुआ बच्चों, 12। कितना हुआ, 12 टेंस। देखो ना, प्रेजेंट 1 2 3 4, 4 4 8 और 4 3 12 है ना। अब हमें आइडेंटिटी सीखना है। क्या सीखना है इसका, आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी का हिंदी होता है पहचान, पहचानेंगे कैसे कि कौन टेंस है ना। तो पहले इंग्लिश में, किस में बच्चों, इंग्लिश में भी पहचानना है और किस में, हिंदी में भी पहचानना। उसी तरह यहाँ इसका भी आइडेंटिटी पढ़ना है, किस में, इंग्लिश एंड हिंदी। इसका भी आइडेंटिटी पढ़ना है किस में, इंग्लिश एंड हिंदी, है ना। तो इंडेफिनिट का क्या होता है आइडेंटिटी, तो इंडेफिनिट का जो आइडेंटिटी होता है वो मैन वर्ब जो होता है या तो V1 होगा या तो V5। अगर कोई भी सेंटेंस का जो मैन वर्ब है वो अगर उसमें मैन वर्ब में या तो V1 या तो V5 हो तो समझ जाना वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो कैसे, वो एग्जांपल से समझना पड़ेगा। फिलहाल तुम इसको उतारो। इसका क्या रहेगा, इसका सिंपल V2 है तो समझ जाओ क्या है बच्चों, वो फ्यूचर सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होगा, या तो शैल होगा या तो विल, और वर्ब का क्या रूप होगा, पहला। अब कैसे तो समझते हैं। देखो जैसे मैंने कहा कि आई गो, मैं जाता हूं, तो यहाँ पे गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, V5 मतलब वर्ब का पांचवा रूप। पांचवा रूप क्या होता है भाई, तो जो मैन वर्ब है पांचवा रूप होता क्या, यहाँ पे बता रहे हैं। V5 का मतलब ये हुआ या तो S लगा रहेगा या तो ES लगा रहेगा ना। अगर S मैन वर्ब में S या ES लगा तो समझ जाना है कि वो एक्शन किस टेंस का है, वो पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर V2 हो तो V2 याद करना पड़ता है, उसको याद करने के बाद समझ में आएगा। और फ्यूचर जो है उसमें शैल विल और वर्ब का कौन सा रूप होगा, पहला, तो समझ जाना वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये थोड़ा ट्विस्ट है, हल्का सा ट्विस्ट है, बाकी कंटिन्यूअस इज सो इजी। हिंदी में देखते हैं पहले इसका, या तो इज या तो एम या तो आर, या तो इज होगा या तो एम होगा या तो आर। और जो मैन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा है, समझ जाना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार अगर पास्ट की बात करें इंग्लिश पहचान, तो या तो वाज होगा बच्चों या तो वर होगा, और मैन वर्ब में क्या लगा रहेगा, आईएनजी। तो समझ जाना किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर में देखते हैं, अगर शैल हो या विल हो और बी प्लस VING हो तो समझ जाना क्या, किसका कंटिन्यूअस है, समझ जाना है वो जो है सो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। बच्चों एक चीज यहाँ पे कॉमन है, VING और VING। तो इससे पता ये चला कि कोई भी मैन वर्ब जिसमें ING लगा हो समझ जाना है कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस। लेकिन किसका कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो तीन है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का कंटिन्यूअस है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। पहचानेंगे कैसे, तो उसको ये तो फिक्स हो गया कि ING लगा तो कंटिन्यूअस है, इतना तो फिक्स है। उसके बाद ये पहचान करना है कि किसका कंटिन्यूअस। तो समझ जाओ बच्चों, अगर ING लगा हुआ है उसमें से इज एम आर ई तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आया और ING लगा हुआ तो समझ जाना है किसका कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का। उसी प्रकार मैन वर्ब में ING लगा हो और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या तो वाज होगा या तो वर, तो समझ जाना है किसका कंटिन्यूअस है, वो पास्ट का है। एकदम इजी है बच्चों, थोड़ा सा फोकस करो, फोकस ऑन बोर्ड, डोंट वाचिंग हेयर देयर, लुकिंग हेयर देयर। एंड फ्यूचर का पहचान कैसे करेंगे बच्चों, तो मैन वर्ब जब भी ING लगा तो क्या है, कंटिन्यूअस। किसका कंटिन्यूअस, तो साथ में शैल लगा हुआ है सर, तो शैल लगा हुआ है तो बच्चों किसका कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग, इसका हिंदी हुआ मैं जा रहा हूं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों, ING। ठीक, इसका एग्जांपल है आई वॉज गोइंग, है ना। इसका एग्जांपल आई शैल बी गोइंग, है ना। यहाँ पे कौन चीज कॉमन है, ING यहाँ भी है, ING यहाँ भी है, ING। तो इतना तो फिक्स हो गया कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन किसका कंटिन्यूअस, तीन कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ING लगा है और साथ में क्या लगा हुआ है, एम, मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। किसका कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। ING लगा हुआ है और साथ में क्या लगा हुआ है, वाज। क्या लगा हुआ, वाज, द पास्ट का कंटिन्यूअस। ING लगा हुआ है, साथ में शैल बी लगा हुआ है, शैल बी क्या लगा हुआ बच्चों, है ना, शैल बी। तो किसका कंटिन्यूअस, द फ्यूचर कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत, आई थिंक नो प्रॉब्लम हियर। एंड नाउ इन हिंदी,
हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, बहुत इजी है, काफ़ी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इसे हिंदी के माध्यम से जानने से। जैसे हिंदी में क्या रहता है बच्चों कि वाक्य जो होता है ना, मैन वर्ब के लास्ट में लगा रहेगा रहा है। क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा हूँ लगा हुआ है। हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अच्छा होता है बच्चों को समझने में। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रहा हो, रही है, रहे है जिस वाक्य के अंत में हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी तरह कुछ नहीं, यहाँ भी रहा रहेगा, बस प्रेजेंट पास्ट में तो था लग जाएगा। रहा था, रही थी और रहे थे, इस टाइप से रहेगा। मतलब हिंदी में क्या होगा? रहेगा, रहेगी, इस टाइप से होगा, होगी, इस टाइप से। बच्चों यहाँ भी एक चीज कॉमन है हिंदी में, रहा, है ना। और साथ में अगर प्रेजेंट है तो है से जुड़ा रहेगा, पास्ट है तो था से, फ्यूचर है तो गा से। जैसे मैं जा रहा हूँ लगा हुआ है वाक्य के अंत में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं जा रहा था लगा हुआ, जा रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस। मैं पढ़ता रहूंगा या मैं जाता रहूंगा तो किसका हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। तो हिंदी में भी बता दिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और इंग्लिश में भी दोनों। अगर मान लो सपोज हिंदी में पढ़ रहे हो कि वाक्य के अंत में रहा, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आसानी से पहचान लिए, लेकिन यहीं पे हम इंग्लिश में बोल दिए आई एम राइटिंग अ लेटर, तब तो फंस सकते हो ना। तो उसको भी समझना है। इंग्लिश में भी अगर कोई वाक्य लिखा रहे तो उसको भी पकड़ने के लिए समझना है ना कि कौन टेंस का ये स्ट्रक्चर है या ये सेंटेंस है। तो आई एम राइटिंग, एम लगा हुआ आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई वॉज राइटिंग, वॉज लगा हुआ आईएनजी तो पास्ट कंटिन्यूअस। आई शैल बी राइटिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। तो इस तरह इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ लिए हम लोग। अब परफेक्ट में चलते हैं। परफेक्ट का क्या होगा बच्चों इंग्लिश में? या तो हैज होगा या तो हैव होगा, और वर्ब का क्या रूप होगा? तीसरा। इसका इंग्लिश क्या होगा बच्चों? तो या तो HAD हैड होगा, वर्ब का तीसरा रूप। इसका क्या होगा बच्चों इंग्लिश? इसका इंग्लिश होगा शैल या विल प्लस हैव, और वर्ब का क्या रूप? तीसरा रूप, है ना। यहां भी एक चीज कॉमन है, गौर करने वाली बात है। V3 और V3, जहां कहीं भी V3 अगर आए तो समझ जाना वो किसका? परफेक्ट का। लेकिन नहीं कि परफेक्ट ही हो सकता, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, हैज हैव। अगर हेल्पिंग वर्ब या तो हैज है या तो हैव है, वर्ब का क्या रूप लगा हुआ है? तीसरा, तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट। अगर अगर हैड है, V3 है, तो समझ जाना वो पास्ट परफेक्ट। अगर शैल विल है उसके बाद हैव अब V3 है तो पास्ट परफेक्ट, है ना। एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल से क्लियर होगा बात, एग्जाम्पल से क्लियर होने वाला है बात। जैसे आई हैव कुछ भी, आई हैव स्पोकन, मैंने बोला है। तो बच्चों यहाँ पे स्पोकन क्या? वर्ब का तीसरा रूप, क्या लगा हुआ साथ में? हेल्पिंग वर्ब, हैव लगा हुआ, समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट है। उसी तरह आई हैड स्पोकन, है ना। यहाँ भी क्या है? हैड लगा हुआ, वर्ब का तीसरा रूप से क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। और यहाँ भी कह सकते हैं आई शैल हैव स्पोकन, ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस। ये तो इंग्लिश में रहा। हिंदी मीडियम, हिंदी में समझने के लिए क्या देखना पड़ता है बच्चों? जो मैन वर्ब है ना, उसमें क्या रहता है? चुका है, चुकी है, चुका है ना, चुकी है। जैसे मैं जा चुका हूँ लगा हुआ है, हौ से जब ये जो रहा समझो प्रेजेंट है। मैं जा चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। मैं जा चुका था लगा तो पास्ट परफेक्ट। इसका हिंदी क्या होगा बच्चों? चुका था, है ना, चुकी थी एंड चुके थे। उसी तरह इसका हिंदी क्या होगा बच्चों? चुकेगा, है ना, चुकेगी एंड ETC, है ना। मैं जा चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। मैं पढ़ चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। मैं पढ़ चुका था पास्ट परफेक्ट। मैं पढ़ चुकूंगा फ्यूचर परफेक्ट। तो ये रहा परफेक्ट का। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसका क्या है बच्चों इंग्लिश में पहचान? तो इसका पहचान है या तो हैज होगा या तो हैव होगा,
और साथ में क्या लगा रहेगा, बीन। और मैन वर्ब में क्या लगा रहेगा, आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस क्या होता है, टाइम। इसका क्या इंग्लिश में पहचान होगा बच्चों, तो इसका पहचान होगा या तो हैड हो, इसमें हैड ही होता है, क्योंकि हैड है आपका पास फॉर्म, अकेला हैड होता है। हैड बीन प्लस VING होगा और प्लस क्या होगा, फॉर या सिंस प्लस टाइम, है ना। ये टेंस पकड़ने के लिए कौन टेंस है। इसका इंग्लिश क्या होगा बच्चों, तो या तो शैल होगा या तो विल होगा प्लस हैव बीन, है ना, और VING प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसका हिंदी में क्या पहचान है, लिख ही देते हैं हम। इसका हिंदी में कह सकते हैं टाइम प्लस क्या चीज, टाइम प्लस रहा है ना, रही है, इस टाइप से रहेगा। इसका भी वही होगा, टाइम प्लस बस था लग जाएगा, रहा था एंड रही थी। इसका क्या होगा बच्चों, इसका होगा टाइम प्लस रहेगा, है ना, रहेगी एंड रहेंगे, etc। एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी क्या था बच्चों, रहा रही है, यहाँ भी रहा रही है, बट यहाँ पे फोकस ये करना है कि इसमें रहा रही टाइम नहीं शो कर रहा है, इसमें टाइम शो करेगा। इसमें सब में क्या टाइम कर, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहीं पे बोल दिया मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ लगा हुआ, लेकिन साथ में टाइम शो कर रहा है। सो वी कैन से वी कॉल इट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो ये रहा चार्ट, है ना, टेंस को समझने के लिए कि कोई भी एक्शन किस टेंस में हो रहा है। तो आई थिंक बच्चों आपने समझ लिया होगा इसे। अब मेरा लेक्चर, अगला लेक्चर जो होने वाला है वो हाउ टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश फ्रॉम रिलेटेड टू टेंस, है ना। टेंस से जुड़ा हुआ जो वाक्य है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में बनाना है कैसे, तो उसका लेक्चर आने वाले वीडियो में होने वाला है बच्चों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, एक बार समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स देखें और अपने कॉपी में नोट करें। और टुडे you know this is my first video lecture of tense on YouTube, so I hope you understand easily, and I hope that you share this video with your friend, with your brother, sister. So please share this video all over the India। कहने का मतलब यह है कि वीडियो को इतना शेयर करो को YouTube पे छा जाए, है ना। ये मेरा पहला वीडियो था बच्चों, मेरा क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम ज़रूर कमेंट करना। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, ओके।